ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں. جب ہماری باری آئے گی, کیونکہ انہوں نے تحیات اقتدار میں نہیں رہنا, جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا. جانتے ہیں کہ یہ میری 10ویں دفعہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, اور کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور کمزرفی کی یہ حالت ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو ملنے ویسے بھی نہیں دیا جاتا. آج آپ لوگوں نے یہ بیریئر دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں کیا, میں پاکستانی نہیں ہوں, میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے یہ جو بیریئر آج لگائی ہوئی ہے, تو آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ جو ہے نفرتیں بڑھا رہے ہیں, آپ لوگ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. آپ لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک جاری تھا وہ ایسے ہی جاری رہے گا. پہلی بات. دوسری بات, جو پرسوں ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ, اس میں ہمارے ایک MNA شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہے. وہاں پر ہمارے صوبائی وزراء مینا خان بھائی اور باقی دوست بھی موجود تھے, ہمارے باقی پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے. جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ غیر سیاسی ہے, وہ سیاست میں جو ہے نہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, نہ انہوں نے اس سے پہلے سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے, اور ان پر ان ٹھنڈی راتوں میں, سردی کے اس موسم میں واٹر کینن کا استعمال یہ غیر انسانی ہے. اور جو ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلتے آئے ہیں, تو اس جعلی وزیر اعلیٰ کی یہاں پنجاب میں حکومت ہے, اور اس کی سرپرستی میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے. تو میں تمام ہمارے جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں, ہمارے جو صحافی برادری ہے, جو ہمیشہ عورت کارڈ کے پیچھے جو ہے کچھ لوگوں کو چھپاتے تھے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمران خان صاحب کی بہنیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے, جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو جو ہے غیر انسانی طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے؟ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب وہ ناحق قید ہیں, وہ جو ہے اس پر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, نہ ان کے کیسز لگائے جا رہے ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام جو ہے یہ لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ یاد بھی رکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریں کوئی, یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں, ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہے چور ہیں, تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں. جب ہماری باری آئے گی, کیونکہ انہوں نے تحیات اقتدار میں نہیں رہنا, جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا انشاءاللہ. تو جی ناظرین کرام, آپ سن رہے تھے جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی گفتگو. یہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی. تو اپنی گفتگو میں انہوں نے ناظرین کرام ایک دفعہ پھر سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں تقریباً 6ٹی مرتبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن میری ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی میرے لیڈر کے ساتھ, اور مجھے رستے میں ہی روک دیا گیا. انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہر چیز کا جو ہے وہ حساب ہوگا, ہر چیز کا سود کے ساتھ جو ہے وہ حساب دیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ اقتدار میں چمٹے نہیں رہیں گے. کل کو جب ہماری باری آئے گی, حالات چینج ہوں گے, تو پھر ان کے کسی بہانے کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ میں 3 سے 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں, اور مجھے جو ہے ملنے نہیں دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 3 سے 4 کروڑ لوگوں کے توہین کی ہے, اور وہ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے جو کہ اس ملک کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر بھی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. تو اس سے آپ کیا جواب دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو جو ہے ان کا ایک نمائندہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, تو وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے.
तो आप उसकी मुलाकात नहीं करने दे रहे उनको। तो यहाँ पे ये बात वाज़ह होती है नाज़रीन इकराम की, इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर थे उनकी मुलाकात अक्सर खान साहब से हो जाती थी। तो इससे ये साबित हुआ कि जो अली अमीन गंडापुर थे उनकी दोनों तरफ बात चल रही थी, खान साहब से भी और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी। लेकिन जो वज़ीर आला सहील अफरीदी हैं, ये सिर्फ एक तरफ ही नज़र आ रहे हैं, वो ही अपना लीडर इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ इनकी दूरियां वाज़ह तौर पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो मुलाकात में जो मेन रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन करम, अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई यहाँ किसी किस्म का कोई अदालती आर्डर के ऊपर अमल नहीं हो रहा। अदालती हुक्म है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो ताकत का कानून है वही यहाँ पे चल रहा है। कोई जो उम्मीद की किरण है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे यकीनन जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, उनके अंदर गलत असर जाएगा कि उनका जो नुमाइंदा है उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और इस तरह से सहील अफरीदी ने मज़ीद कहा कि जिस तरह से ख़वातीन के साथ जो हुआ इमरान खान की बहनों के साथ, अलीमा खान के साथ, और जो उनकी दूसरी बहन है, तो उनके ऊपर जो रात को वाटर कैनन गिराए गए ठंडे पानी के, हालांकि वो कोई रियासत के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं बन रही थी, बल्कि वो अपने भाई के साथ मुलाकात के लिए जो है वो धरना देने की कोशिश कर रहे थे अडयाला जेल के बाहर। तो उनके साथ इस तरह का जो सलूक किया गया है, तो ये भी नाकाबिल कबूल है और अनएक्सेप्टेबल है। और ये सब कुछ जो है मॉनिटर हो रहा है, और सब कुछ जो है इनको भुगतना पड़ेगा जो लोग आज कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब जो कि खातून है, तो उनके सूबे में इस तरह से होना यकीनन जो है उनके जो अपना दावा है ख़वातीन के हवाले से उसकी नफ़ी करता है। बहरहाल नाज़रीन करम, इस हवाले से मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, बालाहर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात की खराबी की वजह से और तजारती बंदिश की वजह से होने वाले नुकसान को ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका, और बालाहर उसने पाकिस्तान के जो 2 बुनियादी नौयत के मुतालबे थे उनके ऊपर अमल करने का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हमारे सामने आई है। अफगानिस्तान के सामने जो 2 बुनियादी नौयत के मुतालबे थे पाकिस्तान के, कि अगर अफगानिस्तान इन 2 मुतालबात के ऊपर अमल करता है तो तब भी इसके साथ ताल्लुकात जो है वो ममूल पर जा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, उन 2 मुतालबात के ऊपर अफगानिस्तान ने जो है अमल करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की जानब से जो मुतालबे रखे गए थे उनमें सबसे बड़ा जो बुनियादी नौयत का मुतालबा था वो ये था कि एक वो लोग जो अफगानिस्तान के शहरी हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक कौमी फतवा जो है वो जारी करे अफगानिस्तान की रजीम, और उन लोगों का पाकिस्तान में आकर लड़ना हराम करार दिया जाए। तो जी नाज़रीन करम, अफगानिस्तान की हुकूमत ने पूरे अफगानिस्तान से कम पेश 1000 से जायद उलमा कराम को काबुल में इकट्ठा किया, और उनकी जानब से ये फतवा जारी करवाया गया है, जिसमें ये बाकायदा ऐलान किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और साथ साथ वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में जाकर लड़ते हैं, चाहे वो अफगानी हैं चाहे वो गैर अफगानी हैं, उनको अब ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर कोई अफगान शहरी इस हुक्म के ऊपर अमल नहीं करता, इसके बावजूद पाकिस्तान में जाके लड़ता है या TTP की सपोर्ट करता है, ऐसे लोग रियासत महालत सब्र किए जाएंगे, ये गैर शरई होगा, और साथ साथ ऐसे लोग जो है वो सजा की मुस्तक होंगे। नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है दोनों ममालिक के तल्लुकात के हवाले से। ये नाज़रीन कराम पाकिस्तान की जानब से लॉन्ग टर्मली ये मुतालबात सामने रखे जा रहे थे, तो अब अफगानिस्तान की जानब से मुतालबात के ऊपर अमल करना जो है एक दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात की बहाली की जानब अहम कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इस हुक्म के ऊपर अमल होता है, जिससे TTP की सपोर्ट खत्म होती है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद होती है, तो इससे दोनों ममालिक जो है वो मुस्तफीद होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक के जो तल्लुकात हैं वो बुनियादी नौयत के हैं। दोनों ममालिक का जो अमन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ अमन जुड़ा हुआ है बल्कि माशियत भी दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बड़ी तजारती मंडी था, वही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तजारती मंडी था, और अफगानिस्तान के लिए मुतबादल ढूंढना जो है माशी खुदकशी के मुतरादब था। और उम्मीद करते हैं कि इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। और यहाँ पे ये बात मैं वादा करते चलूँ कि दोनों ममालिक के जो उलमा है वो यकीनन एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। और ये हालिया जो पेशरफ्त हमारे सामने, ये भी अफगानिस्तान के उलमा की जानब से
जो है ये फतवा हमारे सामने है। कम पेश अफगानिस्तान के 34 सूबों से 1000 के करीब जो उलमा हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हम अपने फैसले खुद करते हैं, हम खुद मुख्तार नेशन है, हमें किसी भी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई ऐसा इत्तेहाद बनाता है जिसमें भारत शामिल ना हो तो बांग्लादेश उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की जानब से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान कोई सार्क के मुतबादल नया इलाकाई ब्लॉक बनाता है और उसमें बांग्लादेश को शमूलियत की दावत देता है तो बांग्लादेश बगैर सोचे समझे उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में उसको भारत समेत किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने फैसले खुद लेता है। वाज़ेह नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान की जानब से ये तजवीज़ रखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जानब से सार्क को यरगमाल बनाने के बाद सार्क जो फोरम है वो अपनी फालियत खो चुका है और इस भारत ने उसको खोखला कर दिया है। लिहाजा जनूबी एशिया में एक ऐसा फोरम बनाने की जरूरत है जो कि सार्क के मुतबादल हो और उसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश शामिल हो सकते हैं और बाद में इसमें मजीद मालिक को शामिल होने के लिए दावतनामा भिजवाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा बयान बांग्लादेश की हुकूमत की जानब से हमारे सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तजवीज़ के साथ न सिर्फ इत्तफाक किया बल्कि भारत को आईना भी दिखाया। बांग्लादेश के जो मशीर हारजा हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि भारत के बगैर अगर पाकिस्तान को ऐसा ब्लॉक बनाता है सार्क के मुतबादल के तौर पे तो बांग्लादेश को किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है और वो फौरी तौर पर इसमें शामिल हो सकता है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की जो इलाकाई पॉलिसी है उसमें बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है।